بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم سید نصیب زادہ ان فرنٹ آف یو. اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے بایو ٹیکنالوجی کا ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ میڈیکل لائن سے بھی ریلیٹڈ ہے. نام ہے ٹاپک کا جین تھیراپی، جینیٹک ڈس آرڈر. اسٹوڈنٹس، جین تھیراپی کا کیا مطلب ہے؟ کون سے ٹائپس ہے جین تھیراپی کے اور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پروسیجر کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ جینیٹک ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آتے ہیں جینیٹک ڈس آرڈر کی طرف. جینیٹک ڈس آرڈر ایک ہوتا ہے آرڈر، پراپر ارینجمنٹ، پراپر ایک ترتیب ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے جینیٹک ڈس آرڈر جب جین میں بے ترتیبی آ جائے، کوئی جین درمیان میں فالٹی ہو جائے، مسڈ ہو جائے، یا وہ کچھ ایسی طریقے سے تبدیل ہو جائے کہ وہ مقرر یا ریکوائرڈ پروٹین نہیں بنا سکتا. اسٹوڈنٹس، جینیٹک ڈس آرڈر کو ڈیفائن کرتے ہیں A disease which transmit، یہ ایک ایسی بیماری ہے which transmits from parents to offsprings due to some faulty or defective genes transmission. Again, a disease which transmits from parents to offsprings due to some faulty gene transmission. وہ بیماری جو آباؤ اجداد سے، پیرنٹ سے، ماں باپ سے بچوں کو منتقل ہوتی ہے فالٹی جین کی وجہ سے، یا ڈیفیکٹیو جین کی وجہ سے، یا خراب جین کی وجہ سے، اور یہ بیماری جنریشن تک جاری رہتی ہے. اٹ رنز ان دا جنریشنز. مثالی میں کچھ دیتا ہوں آپ کو اسٹوڈنٹس. سب سے پہلا مثال ہے ڈائبیٹس. اگر ماں باپ میں سے ایک بھی ڈائبیٹک ہے تو بچوں میں بہت زیادہ چانسز ہے کہ وہ ڈائبیٹک ہوں گے، کیونکہ یہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے. اس طرح بی پی، اس طرح سائیکیٹرک پرابلمس جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہے، یہ بھی جینیٹک ڈس آرڈرس ہوتے ہیں. اصل میں جو جین فالٹی ہو، ڈیفیکٹیو ہو، وہ اس کو جو کام دیا گیا ہو یا تفویض کیا گیا ہو کہ آپ نے اس پروٹین کو بنانا ہے، تو وہ پروٹین نہیں بنا پاتا، نمبر ایک. نمبر دو، یا وہ خراب پروٹین بناتا ہے. اگر خراب پروٹین بناتا ہے تو بھی بیماری کا باعث بنتا ہے، اگر نہ بھی بنا پا رہا پھر بھی بیماری کا باعث بنتا ہے. اسٹوڈنٹس، اصل میں جین تھیراپی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ان جین تھیراپی وی ریپلیس ڈیفیکٹیو جین ود نارمل جین. اصل میں یہ ایک علاج ہے. اس میں ہم ڈیفیکٹیو جین یا فالٹی جین، خراب جین کو نارمل جین سے ریپلیس کرتے ہیں. دوسرا، سائلنسنگ فالٹی جین. فالٹی جین کو ہم سائلنٹ کرتے ہیں اگر وہ خراب پروٹین نہیں بنا رہا تو. اگر بنا رہا ہے تو اس کو ہم ریپلیس کرتے ہیں. پھر اگر وہ فالٹی جین ہے، ڈیفیکٹیو جین ہے، لیکن وہ خراب پروٹین سنتھیسائز نہیں کر پا رہا تو اس کو ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں. جب ہم اس کو سائلنٹ کر دیتے ہیں تو دو قسم کے ہوتے ہیں. دے ڈو ناٹ فارم پروٹین. ڈیفیکٹیو جین کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو یا پروٹین نہیں بنا پا رہا، اور یا میل پروٹین بنا رہا ہے، ناقص پروٹین بنا رہا ہے. اس کے علاوہ انٹروڈیوس نیو نارمل جین. تین طریقے ہیں جین تھراپی کے، جین کے علاج کے: ڈیفیکٹیو جین، یا میل جین، یا اس کے علاوہ جو فالٹی جین ہے. تین طریقوں سے ہم اس کی تصحیح علاج کر سکتے ہیں: ریپلیسنگ ڈیفیکٹیو جین ود اے نارمل جین، سائلنسنگ آف فالٹی جین، انٹروڈیوس نیو نارمل جین. اب آتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف. جین تھراپی کیا ہوتی ہے؟ دی پروسیس آف ریپلیسنگ ڈیفیکٹیو جین ود نارمل جین. جب ہم ڈیفیکٹیو جین کو نارمل جین سے ریپلیس کرتے ہیں
डिफेक्टिव जीन को हटाते हैं, उसकी जगह नॉर्मल जीन लाते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं सेल के अंदर। तो इस तरीकों को जीन थेरेपी कहती है। स्टूडेंट्स, ये दो किस्म के होते हैं, या तो हम बॉडी के अंदर ही फॉल्टी जीन को रिप्लेस कर देते हैं विद ए नॉर्मल जीन, और या बॉडी से बाहर। तो दो तरह के होते हैं। नंबर वन, इन वेवो, इन मीन्स इनसाइड द बॉडी। इन वेवो जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ अ पर्सन हैविंग फॉल्टी जीन। वो पर्सन जिसकी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर फॉल्टी जीन मौजूद है, स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं बना पा रहा या माल प्रोटीन बना पा रहा है, तो हम बॉडी के अंदर ही उसका इलाज कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय अ हेल्दी जीन, बाय अ नॉर्मल जीन। और दूसरा एक्स वेवो जीन थेरेपी, एक्स मीन्स आउटसाइड, बॉडी के बाहर। इस जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ सेल आउटसाइड अ बॉडी in an artificial medium and then introduce back into the body of that person having a faulty gene. Genes are introduced into a cell. सेल के अंदर नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, आउटसाइड अ बॉडी सेल को हटा देते हैं, बॉडी से निकाल देते हैं आउटसाइड द बॉडी, वो सेल में फिर इंट्रोड्यूस कर देते हैं नॉर्मल जीन को इन एन आर्टिफिशियल मीडियम। नेचुरल मीडियम तो बॉडी है, उसमें नहीं है, आर्टिफिशियल मीडियम आउटसाइड द बॉडी ये काम हो रहा है। और फिर उसको जब ट्रीट किया जाता है तो जिस पर्सन की बॉडी के अंदर डिफेक्टिव जीन है, उसी शख्स के बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। स्टूडेंट्स, असल में बात हो रही है हाउ टू इंट्रोड्यूस नॉर्मल जीन इन अ सेल। नॉर्मल जीन को सेल के अंदर हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। वो सेल जिसके अंदर एक डिफेक्टिव जीन है, फॉल्टी जीन है, खराब जीन है, जो स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं बना पा रहा, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहले, नॉर्मल जीन्स आर प्लेस्ड इन सेलुलर व्हीकल्स। नॉर्मल जीन को हम सेलुलर व्हीकल गाड़ी का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जाना या सामान को ले जाना, इसको वेक्टर बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर। और ये वायरस होता है, बैक्टीरिया भी होती है। तो वेक्टर जो ले जा रहा है नॉर्मल जीन को सेल के अंदर, उसको हम सेलुलर व्हीकल कहते हैं। ये वायरस होता है, ये इसको हम वेक्टर भी बोलते हैं, कैरियर भी बोलते हैं, ले जाने वाला। क्या मैंने बोला, नॉर्मल जीन्स आर प्लेस्ड, नॉर्मल जीन को रखा जाता है इन सेलुलर व्हीकल, वायरस के अंदर, वायरस की बॉडी के अंदर, जिसको हम सेलुलर व्हीकल कहते हैं, सिंपल वायरस भी कहते हैं, वेक्टर भी कहते हैं। वायरस, वी नो द वायरस लिव इनसाइड द सेल्स। ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है वायरस, ये सेल के अंदर मौजूद होते हैं। जब भी बॉडी को एंटर होते हैं तो सेल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दे आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। तो सबसे पहले हम वायरस लेते हैं। वायरल डीएनए इज ऑल्टर्ड, वायरस का जो डीएनए होता है हम उसको चेंज कर देते हैं बाय नॉर्मल ह्यूमन जीन, उसमें नॉर्मल ह्यूमन जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देन अलाउ द वायरसेस टू इन्फेक्ट टारगेट सेल्स, फिर वायरस को उस पर्सन की बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है कि जहां पर इन्फेक्टेड सेल है, जहां पर मुतासिरा सेल है, जहां पर वो डिफेक्टिव जीन है, ताकि उसको उसके अंदर ये नॉर्मल जीन को ले जा सके। टारगेट सेल्स, जो सेल डिफेक्टिव है, जिसके अंदर डिफेक्टिव जीन है, लेकिन आपको पता है कि बाज़ औक़ात वो टारगेट सेल तक नहीं पहुंच पा रहे। टारगेट सेल तो स्पेसिफिक होते हैं, सारे सेल तो डिफेक्टिव नहीं होते। तो असल में ये 40% सक्सेसफुल प्रोसेस है। असल में जेनेटिक इंजीनियरिंग एक न्यू टेक्नोलॉजी है, तो वक्त तो लगेगा इसमें, इसकी कामयाबी में। तो 40% ये टारगेट सेल तक पहुंच जाते हैं, और बाकी इसके चांसेस 60% ये है कि ये जीन थेरेपी ना हो सके। स्टूडेंट्स, द नॉर्मल जीन फ्रॉम वायरल डीएनए
replaces a faulty gene. आसान सी बात है. वायरस को लिया जाता है, उसकी डीएनए को चेंज किया जाता है, उसमें नॉर्मल जीन रखा जाता है, फिर वायरस जो एक कैरियर है, वेक्टर है, सेलुलर व्हीकल है, इसको एंटर किया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर. वायरस जब एंटर होता है तो सेल के अंदर चला जाता है, क्योंकि एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है. और जब सेल के अंदर चला जाता है, अगर ये टारगेट सेल डिफेक्टिव सेल के अंदर चला जाए तो वहां पर वो फॉल्टी जीन की जगह हेल्दी जीन, नॉर्मल जीन को रिप्लेस कर देती है और हमारा काम हो जाता है. अगर नहीं होता तो ये सक्सेसफुल प्रोसेस नहीं है. मैंने पहले भी कहा कि द चांसेस ऑफ सक्सेस इज ओनली 40%. अब स्टूडेंट्स आते हैं यूजेस ऑफ जीन थेरेपी. जीन थेरेपी की इस्तेमालात, अहमियत या इंपॉर्टेंस क्या है. सबसे पहले जीन थेरेपी इज यूज फॉर ट्रीटिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स. सिंपल सी बात है, जीन थेरेपी है तो जीन की थेरेपी हो रही है, जीन का इलाज हो रहा है. फॉल्टी जीन को रिप्लेस किया जा रहा है विद ए नॉर्मल जीन, इसको रिपेयर किया जा रहा है, या मिसिंग जीन की जगह हम इंट्रोड्यूस करते हैं नॉर्मल जीन को. तो जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर, इसी वजह से मैंने पहले इसको डिफाइन किया. ये वो डिसऑर्डर होता है जिसमें डिजीजेस पेरेंट से अगली नस्लों तक चले जाते हैं. ठीक है. इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सम कैंसर, सम टाइप ऑफ कैंसर. जो कैंसर सेल्स है जिनके अंदर फॉल्टी जीन्स है, उसको रिप्लेस किया जाता है विद नॉर्मल जीन, और उन फॉल्टी जीन को साइलेंस किया जाता है, खामोश किया जाता है. इसके अलावा इट कैन प्रोड्यूस लॉन्ग टर्म और परमानेंट ट्रीटमेंट. इससे ज्यादा देर तक या देरफा, जो ज्यादा देर चल सके, इलाज मुमकिन है जो साल हर साल चल सके, और या परमानेंट ट्रीटमेंट भी इस कैंसर का किया जाता है, या कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर या उन बीमारियों का जो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, जस्ट लाइक बीपी है, डायबिटीज है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, नफ्सियाती मसाइल है. तो स्टूडेंट, दीज वर ऑल अबाउट द जीन थेरेपी के जीन की थेरेपी, जीन की मुरम्मत, जीन की तस्हीह, जीन का इलाज कैसे होता है. थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी.